Good morning. Welcome to my class 10th, chapter 6, life processes. Already its two volumes are in the air on YouTube, and I'm sure you have watched these two videos. In those videos, I have discussed the mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition in plants, that is photosynthesis. And today we are going to start the nutrition in animals, and we have started it by the nutrition in amoeba. Why amoeba? Because it is a unicellular organism. All the processes are done by the single cell, and let us study how it will operate. Now, the nutrition in amoeba, it's unicellular organism, means it is made up of only one cell. It is holozoic mode of nutrition. What is the meaning of holozoic? It intakes completely the complex food inside it. It is carnivorous, means it is meat eater and plant eater. It will eat both animals and plants. So it is carnivorous, it is holozoic, and the mode of nutrition is phagocytosis. Let us see how the following steps are being followed in amoeba. First is ingestion. How it will ingest the food? See carefully. This is amoeba. This is cell, one cell, of course, cytoplasm, nucleus, and this is food particle. What will it do? The finger-like projection will come out. अमीबा की बाहर finger-like projection आएगी. इसे हम कहते हैं pseudopodia. Pseudo का मतलब होता है false, नकली, झूठे. पोडिया का मतलब होता है foot, यानी कि झूठा foot. है नहीं, इसने बना लिया है. सूडोपोडिया ये क्या करता है, यहां से जो फूड पार्टिकल है उसको अपने अंदर ले लेता है. ये देखो, ये फ्यूज हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ये अंदर आ गया फूड वैक्यूल इनसाइड आ गया, मींस इंजेक्शन हो गई है. अब यहाँ पे जो वैक्यूल होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स हैं लाइपेज, प्रोटीनेज एंड डाइपेप्टाइडेज. ये तीनों मिलके फूड की डाइजेशन करते हैं. Ingestion by pseudopodia and digestion by lipase, proteinase and dipeptidase. जिसके पीछे एज लगा होता है वो एंजाइम होता है. तो ये फूड की डाइजेशन हो गई. अब होगा क्या, जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा अमीबा? कुछ नहीं, इसमें से फूड जो है ना डिफ्यूज हो जाता है. जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो देखो यहां से ऐसे बाहर आ जाता है, मींस इस सेल के अंदर आ जाता है. डिफ्यूजेस from vacuole to cytoplasm. अब आ जाओ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज बीइंग यूज्ड अप फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड अदर प्रोसेसेस. अब इसकी सेल में और बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं. मेंटेनेंस का है, पुराने पार्टिकल्स को बाहर भेजना है. ये सारे काम कौन करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे जो एनर्जी मिलती है ये सारे वर्क वही होते हैं. तो इसने क्या कर दिया? एसिमिलेशन भी हो गया, मींस डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड अप. वेल, लास्ट स्टेप है इजेशन. जो वेस्ट मटेरियल था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, अब उसका क्या होगा? कुछ नहीं, ये वैक्यूल कॉर्नर पे आएगा. जैसे वैक्यूल अंदर आया था वैसे वैक्यूल को ये बाहर फेंक देता है, ऐसे कर देता है. इट इज थ्रोन आउट. अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट हो जाता है. इन ह्यूमन बीइंग और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो सारे वर्क होते हैं ना अलग अलग पोर्शन करते हैं, बट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो होता नहीं है. ना स्टमक होता है, ना इंटेस्टाइन होती है, ना माउथ होता है. बेचारा एक ही तो सेल है, तो सारे काम एक ही सेल करती है. कितना ब्यूटीफुल है ना, इतना ग्रैंड वर्क कर रहा है ये सिंगल सेल. सी, सो ब्यूटीफुल इट इज. Once again, let us revise. Nutrition in amoeba. It's a unicellular organism. It is holozoic, takes the complex food material. Carnivorous means as a whole it consume करता है, बाहर break नहीं करता. Carnivorous means it is plant eater and meat eater both. Phagocytosis, it is the mode of nutrition. It follows the following steps. Ingestion by finger-like projection, we call it pseudopodia. Then food is taken in. What will be done next? The food will be digested. How? By these enzymes, lipase, proteinase and dipeptidase. Then what will happen? Absorption. Means the digested food is diffused out in the cell. And then it is assimilated, means it used up for metabolic processes, means it has got energy after eating food.
एंड द लास्ट वन इज इजेशन. हाउ द इजेशन इज डन? जैसे वैक्यूल अंदर आया था वैसे वैक्यूल को ये थ्रोन आउट कर देते हैं. तो ये कंप्लीट अमीबा का न्यूट्रिशन होता है. वेल, नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले देखते हैं डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर माउथ. सी, दिस इज द मिल्क टीथ डेंटल फॉर्मूला. मिल्क टीथ में क्या होता है? ये ये इंसाइजर्स होते हैं. ये जो बड़े बड़े दांत है ना आगे वाले, इसे इंसाइजर्स कहते हैं. दीज आर 2 इन नंबर. आप यहां से लाइन एक लगा दो. अपने माउथ में 2 लाइन्स होती है ना. सी, आपके माउथ में 2 लाइन्स होती हैं. सेंटर से ऐसे काट दो, अपनी इमेजिनेशन में कट कर दो. हम इसकी बात कर रहे हैं. ये देखो, 2 तो हो गए इंसाइजर्स, राइट. 1 होता है कैनाइन टीथ. और जब मिल्क टीथ होते हैं तो प्री मोलर नहीं होता और 2 मोलर होते हैं. ये हमारा मिल्क टीथ का फॉर्मूला है. 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन. ये देखो, इंसाइजर्स, कैनाइन और प्री मोलर जो है इसमें 0 है, बट मोलर 2 इन नंबर होते हैं. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे प्री मोलर्स नहीं होते हैं, 2 मोलर्स होते हैं, राइट. और जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं, बाय द वे आपके मिल्क टीथ कितने होते हैं? देखो, 1 साइड में आप काउंट करो तो ये मिल्क टीथ होते हैं 5 इस तरफ होंगे. अब लोअर जॉ में आ जाओ, लोअर लाइन में 5 यहां होते हैं, 5 यहां. कितने हो गए टोटल? 20. तो हमारे मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं. व्हाट्स द फॉर्मूला? 2102/2102. हम यहां की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर वाले हाफ पोर्शन की. परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3. 2 इंसाइजर्स, ये आगे वाले दांत, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स. पीछे वाले 3 जो बड़े बड़े दांत होते हैं, चौड़े, बड़े लंबे में नहीं, चौड़े दांत होते हैं, उन्हें हम मोलर्स कहते हैं. डू यू नो, जो हमारा सबसे लास्ट वाला टूथ है, ये 2 ऊपर 2 नीचे, जो ये 4 है, इनको हम अक्कल दाढ़ भी कहते हैं. सिंपल कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में हम इसे अक्कल दाढ़ कहते हैं. ऐसा माना जाता है कि जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है तो ये 4 टीथ भी डेवलप हो जाते हैं और बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है. सीधा फॉर्मूला, हमारे इधर और इधर अपर पोर्शन में टोटल 8 टीथ होते हैं. तो 8 और 8 कितना हो गया? 16. तो ऊपर वाले जॉ में हमारे जो है 16 टीथ होते हैं और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 होते हैं. एक्चुअली आप सबके अपनी फैमिली में काउंट करना, आजकल मत करना बिकॉज कोरोना फैला हुआ है, तो हमें अपना माउथ कवर करके ही रखना है. वेरी सॉरी, बट आप अपने ही काउंट करो तो कितने निकलते हैं, आप किस स्टेज में पहुंचे हैं, क्या आपकी अक्कल दाढ़ आई है या नहीं आई है. आप अपने आप चेक कीजिए. ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हैं. सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. After amoeba, now physiology of nutrition in human beings. See, what is physiology of nutrition in human beings? First of all, the very first step is ingestion. What is ingestion? The food is taken in by mouth, और mouth को कहते हैं buccal cavity. How the ingestion is done? By mouth or buccal cavity. Okay. नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. यू नो, डाइजेशन इज स्टार्टेड इन आवर माउथ. हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कैसे? हमारे माउथ में एक तो म्यूकस होता है, फील करो कुछ लेसला सा होता है, उसे हम म्यूकस कहते हैं. म्यूकस का वर्क क्या होता है? ये फूड को मॉइस्चर करता है, गीला कर देता है. और हमारे जो टीथ हैं ये क्रशिंग एंड च्यूइंग करते हैं. क्रशिंग एंड च्यूइंग से क्या होता है कि म्यूकस के साथ पूरा जो फूड है वो मिक्सअप हो जाता है. वी कॉल इट मेस्टिकेटेड. फूड हमारा क्या हो गया? मेस्टिकेटेड. मॉइस्चर भी हो गया और साथ में च्यूइंग एंड क्रशिंग भी हो गई. वेल, हमारे माउथ में एक स्लाइवरी एंजाइम होता है. उस स्लाइवरी एंजाइम को हम लोग कहते हैं एमाइलेज और टाइलिन. पी रिमेन्स साइलेंट, PTYLIN. ये टाइलिन क्या करता है? ये हमने जो स्टार्च खाया है, अब स्टार्च किस में होता है? राइस में होता है, चपाती में होता है, उनमें स्टार्च होता है. हमने स्टार्च खाया, टाइलिन यानी कि जो हमारा स्लाइवरी एंजाइम है वो उसको माल्टोज में बदल देता है. सी, जो स्टार्च होता है वो फीका होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. आप अपने माउथ में फूड को 27 टाइम्स च्यू करो. आप उसको 27 टाइम्स च्यू करोगे तो क्या देखोगे? फूड स्वीट इन टेस्ट हो जाता है.
वो स्वीट क्यों होता है? क्योंकि इस फूड में जो स्टार्च था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? इसलिए फूड को स्वेलो नहीं करना चाहिए। जब हम फूड को स्वेलो कर जाते हैं तो बहुत सारा स्टार्च अनडाइजेस्टेड रह जाता है और वो बहुत देर बाद डाइजेस्ट होता है। फिर हमने क्या किया, फूड को स्वेलो कर लिया। ये देखो, ये मैंने बक्कल कैविटी बनाई है। बक्कल कैविटी से फूड, ये फूड पाइप से होता हुआ, इसे हम ओएसोफेगस कहते हैं। स्पेलिंग है ओएसोफेगस, तो स्पेलिंग याद हो जाती है OESOPHAGUS। वैसे हम इसको ईसोफेगस कहते हैं। अब फूड जो है ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। ईसोफेगस से कैसे जाता है? एक ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपको पता है, किसी बंदे को उल्टा लटका दो, आप उसको खाना दो तो भी उसके पेट में जाएगा। कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। इतनी जबरदस्त मूवमेंट है कि फूड को वापस नहीं आने देती है। सो ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट से होते हुए अब हमारा फूड कहाँ चला गया? हमारे स्टमक में। जब हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जो स्टमक की ग्लैंड्स होती हैं 3 थिंग्स सीक्रेट करती हैं। पहला म्यूकस, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब, यस, और तीसरा है पेप्सिन एंजाइम। अब सी, HCl का काम क्या है? ये जर्म्स को किल करता है। अब हम थोड़ा बहुत फूड में कुछ कुछ चला जाए, कुछ पैथोजेंस चले जाए या कुछ छोटे मोटे से चले जाए, तो उन जर्म्स को किल करता है जो फूड में थोड़े बहुत चले जाते हैं। और मीडियम को एसिडिक करता है। हमारे पेट में जो pH है वो 2 होना चाहिए, मीन्स मीडियम शुड बी वेरी एसिडिक। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पेप्सिन के बहुत नखरे हैं। पेप्सिन बोलता है भाई देख, अगर pH 2 होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करता, मैं स्ट्राइक पे चला जाता हूँ। बेचारा क्या करे। इसलिए हमारे स्टमक में HCl जब तक नहीं होगा तब तक ये अपना पेप्सिन भाई साहब अपना काम नहीं करने वाले। तो ये पेप्सिन एंजाइम करता क्या है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन होता है बिगर पार्टिकल और पेप्टोन्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, उसको तोड़ देता है। तो म्यूकस क्या कर रहा है यहाँ बैठ के? अब बताओ एक बात, पेट में तेजाब निकलेगा, एसिड निकलेगा, तो हमारे स्टमक की वॉल को बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी बहुत जरूरी है। ओके, डिड यू नोटिस यहाँ पे स्टार्च की डाइजेशन नहीं हो रही है, केवल प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब ये सारा फूड जो प्रोटीन कन्वर्ट हो गया पेप्टोन्स में, प्रोटियोसिस में और एसिडिक मीडियम, ये फूड बन जाता है काइम। इस फूड को क्या कहते हैं? काइम। व्हाट इज काइम? डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक जो होता है, यहाँ पे जितनी डाइजेशन होगी, जो सारा फूड जब इंटेस्टाइन में जाता है, उसका नाम है काइम। चलो, इंटेस्टाइन, ये देखो इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है, तो इसका नाम क्यों रखा स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि इसका जो विड्थ होती है वो कम होती है, तभी इसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बिग होती है, इसके अंदर फूड जाएगा। अब इंटेस्टाइन की कहानी सुनो। इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, सी केयरफुली, यहाँ पे बाइल जूस आता है। कहाँ से? ये स्टमक के बाजू में लिवर पड़ा हुआ है, लिवर में गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस होता है, राइट? ये बाइल जूस एक डक्ट के साथ, एक ट्यूब के साथ इंटेस्टाइन में जुड़ा होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना जो है इंटेस्टाइन में जाता है, तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को अंदर डाल देता है। अब ये बाइल जूस क्या करता है? देखो, स्टमक में पेप्सिन कहता है कि देखो अगर एसिड होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता। ऐसे ही इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं वो ये कहते हैं भैया एसिडिक नहीं होना चाहिए, इस एसिड को खत्म करो। जब तक मीडियम एल्केलाइन नहीं होगा, यानी कि pH मोर देन 7 नहीं होगा, तो हम काम नहीं करेंगे। बताओ, अब इनका नखरा भी सुनो। तो इसलिए बेचारा बाइल क्या करने आया है? उस एसिड को न्यूट्रल करेगा और मीडियम को एल्केलाइन बनाएगा। और बाइल का क्या काम होता है? सी, हमने फैट खाया, पकोड़े खाए, समोसे खाए, फ्राइड चीजें खा ली हमने। अब जो फैट है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। जब तक फैट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो एंजाइम काम कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है? बाइल जूस फैट को इमल्सिफाई करता है।
एमल्सीफाई का मीनिंग क्या होता है? बिगर फैट पार्टिकल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट करता है और उसको सोल्यूबल बना देता है। किसमें? ऑफ कोर्स अंदर वाटरी ही बेस होता है ना, तो उसमें सोल्यूबल बना देता है। तो बाइल जूस के कितने वर्क्स हो गए? 2 वर्क्स हो गए। फर्स्ट, एक तो मीडियम को एल्केलाइन बनाता है ताकि वो एसिड खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो जूसीज हैं, एंजाइम्स हैं, ये बोलते हैं कि मीडियम बेसिक होगा तो हम काम करेंगे, भैया हम नहीं काम करने वाले। ओके, तो बाइल जूस के 2 वर्क्स है, इट मेक्स द मीडियम एल्केलाइन एंड एमल्सिफाइज फैट। और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसमें एक पिगमेंट होता है, इसका येलो ग्रीन कलर होता है इसका, बाइल जूस का। ओके, अब पेनक्रियास, लिवर ने अपना योगदान दे दिया, उसने बोला भैया मेरे से बाइल जूस ले लो, अपना काम शुरू करो। ये पेनक्रियाज है, ये हमारे स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर ये स्टमक है तो इसके नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहता है लो मैं भी आपको सहयोग करूंगा, योगदान दूंगा, ये अपने एंजाइम देता है। अब इसके एंजाइम के नाम सुनो, ये क्या करेगा? ये हमें ट्रिप्सिन देता है। कौन? पेनक्रियाज। ट्रिप्सिन को इंटेस्टाइन में डाल देगा। इंटेस्टाइन में क्या पड़ा हुआ है? काइन, जो खाना डाइजेस्ट होके आया स्टमक से वो पड़ा हुआ है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो पेप्सिन ने तोड़े थे उनको और छोटे छोटे टुकड़े करके एमाइनो एसिड बना देता है। जब प्रोटीन का एमाइनो एसिड बन जाए, समझ जाना कि डाइजेशन कंप्लीट हो गई है। सो पेप्टोन्स और प्रोटियोज को एमाइनो एसिड में तोड़ देता है ये। अब एमाइलेज, एमाइलेज तो माउथ में भी था, यस, माउथ वाले एमाइलेज को हम कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज, और इसके एमाइलेज को हम कहते हैं इन द एल्केलाइन मीडियम या इंटेस्टाइनल एमाइलेज। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्यों? अभी आपने खाना खाया, मुंह में उसको चलाया ही नहीं, आप सीधा ले गए अंदर, तो कोई ना कोई तो काम करेगा। जो आपने खाना डाइजेस्ट नहीं किया माउथ में, आप जो स्वेलो कर गए थे, अब बेचारा इंटेस्टाइन करेगा ना, तो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, राइट। एक लाइपेज एंजाइम भी होता है जो पेनक्रियाज से आता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर देता है। डिड यू सी कि यहाँ पे सबकी डाइजेशन हो गई, फैट की भी, स्टार्च की भी और प्रोटीन की भी डाइजेशन हो गई, राइट। अब इंटेस्टाइन कहता है भैया तुमने तो अपना दे दिया योगदान, अब मैं भी कुछ कर लूं। तो जो इंटेस्टाइन की खुद की ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, इसको सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। अब ये हमें क्या देता है? देखो इंटेस्टाइन अपने में से क्या निकाल रहा है? एक तो इंटेस्टाइनल पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइडेज क्या करता है? ये भी पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। मींस प्रोटीन का बना था पेप्टोन्स, प्रोटीन का पेप्टोन किसने बनाया था? स्टमक ने। स्टमक ने बोला भैया मैंने इतने बड़े प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बाकी के छोटे टुकड़े तुम करो, तो वो इंटेस्टाइन में होते हैं, अमाइनो एसिड्स बन जाता है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? माल्टेज। माल्टेज इज द नेम ऑफ एंजाइम और ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जब सारी स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाती है मींस स्टार्च की डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अगला है सुक्रोज। व्हाट इज दिस सुक्रोज? ये शुगर होती है, चीनी जो हम खाते हैं ना, चीनी शुगर, उसे हम सुक्रोज कहते हैं। उसको हमारे इंटेस्टाइन में इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इन फाइनल वी कैन से कि डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी कहेगा भाई इंटेस्टाइन को, चल जो तूने खाना डाइजेस्ट किया पहुंचा हमारी सेल्स तक, हमें भी खाना चाहिए। तो ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? पहली बात ये, डाइजेस्टेड फूड को हम लोग काइल कहते हैं। काइन क्या था? काइन जो स्टमक में डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम काइन कहते हैं, जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम काइल कहते हैं। वेल, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये देखो, मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई है। क्यों? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे ना ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। विलाई का काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों इंक्रीज क्यों करना चाहते हैं? ताकि फूड जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। तो विलाई क्या करती हैं? फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे? क्योंकि विलाई, मान लो ये विलाई है, ये सारी विलाई है, इनके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई होती है। ये ब्लड की सप्लाई होती है, इन ब्लड की सप्लाई में जो खाना होता है ब्लड ले जाता है। ब्लड अब क्या करेगा? जितना ग्लूकोज आपकी बॉडी में था, आपके इंटेस्टाइन में बना था वो, और साथ में एमाइनो एसिड,
जाता है फटाफट सारे बॉडी की सेल्स को दे आता है, नॉक करता है, चलो जी खाना आ गया, फटाफट ले लो अपना खाना। तो सारी सेल्स कहती है हाँ हमें ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दे दे। चलो सारी सेल्स में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पहुंच गया। जो आपने पकोड़े समोसे खाए थे, फैट खाया था, उसका फैटी एसिड और ग्लिसरोल ये दोनों कहाँ जाते हैं? ब्लड जाते जाते लिम्फ में डाल जाता है। लिम्फ कहाँ होता है? हमारे पूरे बॉडी में जहां जहां ब्लड जाता है उसके बाहर जो खाली स्थान होता है उसमें ये फैटी एसिड और ग्लिसरोल बांटता चला जाता है, क्योंकि सेल्स कहती है हमें तो चाहिए नहीं, तो ये सारा का सारा लिम्फ में स्टोर हो जाता है। राइट, ये आपका हो गया कि आपने इसकी एब्जॉर्प्शन भी कर दी। अब चलते हैं एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन कहाँ होएगी? सेल्स में। सेल उसको एसिमिलेट कैसे करती हैं? वो रेस्पायरेशन पे आएगा। मींस जो ग्लूकोज हमारे बॉडी की सारी सेल्स में पहुंचा है वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उससे एनर्जी निकलेगी और हम सारे काम करेंगे। हो गई? ओके। अब ये फूड यहां से होता हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो तो स्मॉल होती है, बट उसकी विड्थ बहुत होती है, चौड़ाई बहुत होती है, तभी उसका नाम रखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। वो फूड जाता है जब वहां पर भी जो विलाई या उसके सेल्स बैठी होती हैं वो क्या करती हैं, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बोलती है पानी तेरे को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ आ जा। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या बन जाता है? फीसिस बन जाता है, यानी कि शिट बन जाता है। तो वो फाइनली यहां से होता हुआ एनस से बाहर निकल आता है। जो इसका पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं इजेशन। दोबारा से एक बार बता दूं, फटाफट दोबारा से सुन लो। द फूड इज टेकन इन बाय द माउथ और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से होता हुआ थ्रू ईसोफेगस पहुंचता है स्टमक में। हाँ, पहले ये बता दूं बक्कल कैविटी में क्या होता है। जो स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, फूड मेस्टिकेट हो जाता है और स्टमक में जाके 3 चीजें निकलती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम कहते हैं काइम। अब ये काइम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 लोग अपना जो है हेल्प करते हैं, अपना योगदान देते हैं। कौन? एक लिवर। लिवर क्या करता है? बाइल जूस देता है। और दूसरा पेनक्रियास। पेनक्रियास अपना पेनक्रियाटिक जूस देता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। तीसरा इंटेस्टाइन खुद अपनी ग्लैंड में से इंटेस्टाइनल जूसेस देता है। ये तीनों मिलके फूड की कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। मींस प्रोटीन का बना अमाइनो एसिड और स्टार्च का बना माल्टोज, माल्टोज का बना ग्लूकोज। मींस फाइनली स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। देन फैट का बन गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। तभी कहते हैं कि तली हुई चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तली हुई चीज का जो फैट होता है उसकी बारी कब आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा खाना माउथ से होते हुए, स्टमक से होते हुए जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब आपके पकोड़े समोसे की बारी आएगी। तभी कहते हैं कि हैवी मील जो होता है वो ले लो तो 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसकी डाइजेशन बड़ी देर बाद होती है। और ये आपका फैटी एसिड और ग्लिसरोल बन गया। जो आपने शुगर खाई थी सुक्रोज, वो भी देखो तोड़ दी इसने, किसने? इन्वर्टेज ने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या होता है? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम विलाई कहते हैं, उसमें रिच ब्लड की सप्लाई होती है। वो सारा खाना उठा के खाने में क्या था? ग्लिसरोल एंड अमाइनो एसिड हमारे बॉडी की सारी सेल्स में दे आते हैं। चलो जी खाना ले लो, सबके घर में पहुंचा के आता है। और ग्लिसरोल और फैटी एसिड का क्या होता है? वो लिम्फ में बाहर निकाल देता है कि तुम अपने पूरे बॉडी में फैल जाओ। तो ये वहां कन्वर्ट हो गए। ओके, अब ये खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? केवल वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। अब ये कहते हैं भैया जितना पानी है तू दे दे, अब उसको सोख लेता है और बाकी बन जाते हैं फीसिस। फीसिस एनएस से इजेशन हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं इजेशन। दिस इज द कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर हम इसके नोट्स बनाएं तो बहुत लेंदी नोट्स बनेंगे। मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरीके से दिखा के, मुझे लगता है कि एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से इसको पढ़ो, आपको ये याद हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको रियली वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, सो दैट आई मे मेक न्यू वीडियोस विद ग्रेट एंथुजियास्ट, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रही है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। अब आप बताएंगे कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है कि नहीं। अपने कमेंट्स अच्छे या बुरे जो भी आपको फील हो रहा है आप डेफिनेटली लिखेंगे। टेक इट स्क्रीनशॉट। Now the next topic is breathing and respiration. See, what is the breathing? Breathing is a physical process. See carefully. Inhalation. Intake of oxygen inside means inhalation and release of CO2 एयर आउट। इसे हम कहते हैं इनहेलेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। O2 इज टेकन इन, CO2 इज गिवन आउट, नो एनर्जी रिलीज। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है और कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता है। इनफैक्ट कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। सो अकर्स इन लंग्स, गिल्स एंड स्किन। मीन्स किसी किसी एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, उसमें लंग्स में होती है ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स फिशेस में एंड स्किन इन सम एनिमल्स ऑल्सो, स्मॉल एनिमल्स एटसेट्रा। इट इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, मीन्स सेल्स के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। और मैकेनिज्म इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। सो ब्रीदिंग क्या होती है? जस्ट इनटेक ऑफ एयर मीन्स ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं होता है। बट वॉट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। मीन्स बायो का मतलब लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है जब रेस्पायरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, इंट्रासेल्यूलर है, ये सेल के अंदर होता है। अब आप सोचेंगे डाइजेशन ऑफ फूड तो हमने इंटेस्टाइन में किया था, यहाँ कहाँ से आ गया? एक्चुअली जो ग्लूकोज हमारी इंटेस्टाइन से ब्लड उठा के लेके गया था, सब सेल्स को बांट के आया था। अब वो ग्लूकोज हर सेल के अंदर बैठ के रेस्पायरेशन करेगी और सबको एनर्जी देगी। कैसे? लेट अस सी। मैकेनिज्म इज सेम इन ऑल द एनिमल्स। सभी एनिमल्स में मैकेनिज्म सेम होता है। देखो, हमारे बॉडी की सारी सेल्स में ग्लूकोज चला गया। अब वो ग्लूकोज क्या करता है? जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। ये तो आपको पता होगा कि जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है बीच में, और इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ग्लूकोज इसी साइटोप्लाज्म में होता है और 6 कार्बन कंटेन करता है। यू नो C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, राइट? अब ये क्या होता है? पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देता है। अब ये पाइरूवेट, सी केयरफुली, ग्लूकोज कहाँ है? हमारे बॉडी की सारी सेल्स में। कहाँ से आया? जब इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ था, वहां से ब्लड उठा के हमारे बॉडी की सारी सेल्स में ग्लूकोज देता है। ये ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और थोड़ी सी एनर्जी देता है। उसके बाद यही ग्लूकोज यीस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यही ग्लूकोज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी देता है। जब कभी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बिना हो तो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। सी, पहले क्या हुआ? ग्लूकोज हमारी साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है, पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी दी। ये पाइरूवेट, ईस्ट क्या होता है? खमीरा। आप कभी डोसा खाते हैं, डोसा में जो खमीरा डलता है ना, ईस्ट कहते हैं उसे। और ईस्ट में एक एंजाइम होता है जाइमेज, और ये जाइमेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल, CO2 और एनर्जी देता है। मींस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एनर्जी मिली। असली पर्पस क्या था ग्लूकोज का? ग्लूकोज का असली पर्पस होता है सबके बॉडी में, सारी सेल्स में एनर्जी देना। अब हमारी मसल्स में
लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यही पायरूवेट लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी देता है। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनर्जी देता है और लैक्टिक एसिड। जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, अब बाबा रामदेव हमेशा क्या कहते हैं, जब भी एक्सरसाइज को तो लंबे लंबे सांस लेने होते हैं। लंबे सांस क्यों लेने होते हैं? ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो मसल्स में पड़ा हुआ ग्लूकोज है फटाफट हमें एनर्जी देने के लिए लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। और इससे कई बार मसल्स में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। जब लैक्टिक एसिड मसल्स के एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो क्रैम्प्स आते हैं, राइट। इसलिए हमें बहुत सारी ऑक्सीजन इनटेक करनी चाहिए और हमें लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। यही पायरूवेट हमारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता है सेल्स में ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरीके से सेल ऑर्गेनेली है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। फाइनली जो ये हमारा ग्लूकोज है, जो हमारी इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ था और उसके बाद जो ग्लूकोज सारी सेल्स में गया था, तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में मसल्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन। इससे ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। अब देखो जो खाना हमने खाया उससे ये वाटर अपने आप बना रहा है हमारा बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तो CO2 विल गो आउट और ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये एनर्जी कहाँ जाती है? हमारी सेल्स में AMP पड़ा होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, जो एनर्जी पैदा हुई है उसको खा जाता है, खा के और फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर जाता है। मीन्स अपनी एनर्जी, ये देखो, ये समझो आपका AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपका फॉस्फेट है। ये इसको बोलते हैं चल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बोलता है एनर्जी ले आ पहले तू जाके। तो ये एनर्जी जो यहाँ से निकली है ना, इसको उठाता है और इसके साथ कंबाइन कर जाता है। ये क्या बन गया? ADP। पहले था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अब बन गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये एक और फॉस्फेट को कहता है चल हम बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बोलता है एनर्जी ला वाले पकड़ के। तो ये जो एनर्जी है उसको एनर्जी को लेके इसके साथ एक और बॉन्ड बना लेता है, तो बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, एनर्जी से भरा हुआ है। अब हमारे बॉडी में कोई भी काम होगा तो बॉडी बोलेगा चल एनर्जी लिया। ATP कहता है मैं एनर्जी देता हूं। ये देखो ATP एनर्जी कैसे देगा? सपोज हमारे बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेंटेनेंस का काम चलता रहता है हमारे बॉडी में, वहां हर काम में एनर्जी चाहिए होती है। और तो और जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रीदिंग के लिए, हमारा जो हार्ट है उसकी बीटिंग के लिए एनर्जी चाहिए, किडनी अपना काम कर रही है उसको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? ये जो ATP है ना, ये क्या करेगा, जहां भी एनर्जी चाहिए होगी ना, एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और जो ये एनर्जी इसने ली थी बॉन्ड बनाने के लिए, वो एनर्जी फ्री हो जाती है। अब वो एनर्जी काम आ जाएगी काम करने के। और एनर्जी चाहिए तो एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड और तोड़ देगा, यहां से भी एनर्जी निकलेगी। जब भी बॉन्ड टूटता है एनर्जी निकलती है। तो ये एनर्जी जो है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, कोई भी बॉडी का फंक्शन है जहां एनर्जी चाहिए, ये वहां पे यूज हो जाता है। तो ATP क्या है? ये एनर्जी करेंसी है। जब आप मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं तो रुपीज देते हैं, वो रुपीज हमारी कंट्री की करेंसी है और ATP हमारे बॉडी की एनर्जी की करेंसी है। जहां भी कोई काम होना होगा तो वो वर्क बोलेगा ATP लाया है, चल पहले ATP लेके आ। क्यों? क्योंकि ATP आएगा तो एनर्जी आएगी। एनर्जी कैसे आएगी? ATP फॉस्फेट के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, एनर्जी पैदा होगी और ये उसी वर्क में यूज हो जाएगी। फिर एक और फॉस्फेट का बॉन्ड तोड़ेगा तो और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से जो खाना हमने खाया
फाइनली मीन्स जो ग्लूकोज था वो हमारे बॉडी की सारी सेल्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वाटर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और एनर्जी दिन रात हमारे बॉडी में चाहिए ही और वो यूज्ड अप होती रहती है। इस तरीके से ये रेस्पायरेशन का इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट इज रेस्पायरेशन? आपको नहीं लगता ये फोटोसिंथेसिस से उल्टा है? फोटोसिंथेसिस में फूड कॉम्प्लिकेटेड बना था, इसमें सिंपल फूड की ऑक्सीडेशन हुई। ध्यान से देखो, CO2 और वाटर ने और एनर्जी कहां से थी? सनलाइट। इन तीनों ने मिलके खाना बनाया था, वो खाना हमने खाया, उस खाने से फाइनली हमने CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। मीन्स प्लांट्स ने हमें खाना दिया, ऑक्सीजन दी, हमने उन दोनों को यूज करके CO2 उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर भी हमारे बॉडी में चाहिए होता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। और ATP के, अब आपसे कोई कहे कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो हमारे बॉडी में कहाँ है? वो हमारे बॉडी में ATP के फॉर्म में पड़ी हुई है। ATP में एनर्जी छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है? फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने में। When AMP ADP makes bond with the phosphate, तो एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट? नाउ द रेस्पायरेशन इज ऑफ टू काइंड्स। एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कौन सी थी? ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। एरोबिक का मतलब होता है एयर यानी कि O2 की प्रेजेंस में। एनारोबिक ना, एयर यानी कि ऑक्सीजन नहीं आएगी। एनारोबिक मीन्स ना, नो ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दोनों में अगर डिफरेंस आ जाता है लिखना तो आप समझने की कोशिश करो। एनारोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। CO2 may और may not be produced। ऐसा क्यों लिखा है? देखो, जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। जब मसल्स में एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ये मैंने 2C क्या लिखा है? इथेनॉल में 2 कार्बन्स होते हैं और लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन्स होते हैं, राइट? अब नो वाटर इज प्रोड्यूस्ड। इन दोनों में वाटर नहीं बना क्योंकि दोनों एनारोबिक रेस्पायरेशन है, बट एरोबिक रेस्पायरेशन में वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, गिव्स लेसर एनर्जी। जब जब एनारोबिक रेस्पायरेशन होगी तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 1 मोल से 210 किलो जूल प्रोड्यूस होती है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ये वाली रेस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। और ये वाली रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहते हैं कि योगा में जब हम ब्रीदिंग लॉन्ग ब्रेथ्स लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी हम उतना ही अपने खाने को, उससे ज्यादा एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें लॉन्ग ब्रेथ्स लेने चाहिए। अब ध्यान से देखें एक बार दोबारा से, ब्रीदिंग अलग फिनोमिनन है। ब्रीदिंग में क्या होता है, आप एक बार लॉन्ग ब्रेथ लेके देखो। जब हम लेते हैं तो ये अपर पोर्शन होता है, जैसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और यहाँ पे एक डायाफ्राम होता है। जहां पे लंग्स होती है ना, लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम की शक्ल ऐसी होती है, राइट? ये थोरेसिक कैविटी है और इससे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ये क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। आप फील करो, खुद से फील करो, जब हम सांस लेते हैं थोरेसिक कैविटी वाइड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ एक्सपैंड होती है। डायाफ्राम स्ट्रेट हो जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा ये डाउनवर्ड भी हो जाता है थोरेसिक कैविटी, और थोड़ी सी टाइटन भी हो जाती है। सो ब्रीदिंग से डायाफ्राम पे इफेक्ट पड़ता है। डायाफ्राम एक्सपैंड होता है जब हमारा बॉडी तो सीधा हो जाता है, पूरा सीधा नहीं होता लेकिन थोड़ा फ्लैटेड हो जाता है, और वैसे इस तरीके से रहता है, राइट? ये ब्रीदिंग का होता है। ब्रीदिंग का काम होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन ब्रीदिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस and respiration is a chemical process. O2 is taken in, O2 is doing reaction with cytoplasm. CO2 is given out, but CO2 is produced.
No energy released, but respiration releases energy. No enzyme is used, but in this enzyme is also used. Now it occurs in lungs, gills and skin. It occurs in all the body cells. ये सभी body cells में होती है. ये केवल specialized या तो lungs में होती है, या gills में होती है, या फिर skin में होती है. ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, सेल के बाहर का काम है, सेल के अंदर कुछ नहीं होता है. मैकेनिज्म इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, लेकिन रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म तो सब में सेम होता है. रेस्पायरेशन एक क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है. एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, फूड का डाइजेशन होता है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है. इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर होता है. मैकेनिज्म इज सेम इन ऑल द एनिमल्स. वेल, ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज हमारे बॉडी की सारी सेल्स में पहले पाइरूवेट में बदलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 वाटर और एनर्जी देता है. और जो एनर्जी यहां से रिलीज होती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, adenosine triphosphate. What is this? This is the energy currency of the cell. How energy is stored in ATP? By making the bond with phosphate. When AMP makes bond with phosphate, then energy is absorbed. Hidden हो जाती है. When this bond is broken, energy is given out, जो इन्होंने absorb करी थी. Anaerobic respiration में, in absence of oxygen, in bacteria, muscles, whenever you do strenuous exercise, why do the cramps are there? Because of accumulation of lactic acid. Lactic acid joints पे डिपॉजिट हो जाता है, तो हमें पेन होती है बहुत ज़्यादा. इसलिए कहते हैं कि lots of oxygen should be taken in. Long breaths हमको लेने चाहिए. So no water is produced, but in aerobic respiration water is produced. More amount of energy is released, but in this lesser amount of energy is released. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस आए तो भी आप लिख सकते हैं. एनारोबिक एंड एरोबिक में अगर डिफरेंस आए तो भी आप लिख सकते हैं. और हम ब्रीदिंग का फिनोमिनन में किसका मेन रोल होता है? डायाफ्राम का. आपको पता है अगर ये डायाफ्राम चला जाए तो हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं. डायाफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और डायाफ्राम ही बेसिकली अपनी पोजीशन वो चेंज करता है. ऊपर वाले पोर्शन को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और इससे नीचे वाले पोर्शन को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं. हैबिट्स.